Good morning children. Today we'll do reading modeling of the chapter called Alice in Wonderland. So let's start. One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. Suddenly she saw a white rabbit scamper by. He had pink eyes and was wearing a blue coat. He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away he said, "Oh dear, I'll be too late." She thought there was something very different about this rabbit. It could talk, it wore a red waistcoat and it carried a watch. Alice wondered, a talking rabbit? A rabbit who wears a waistcoat? Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. Children, this is how we have to read page number 66. Okay. You have to give appropriate pose and do appropriate adjustment in your voice. Alright. So, now we shall read page number 67. Okay. So, page number 67. The rabbit started running and Alice followed the rabbit. The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. Alice jumped into the rabbit hole too. The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. Alice said aloud, "Where am I? How many miles down have I fallen? I must be getting somewhere near the center of the earth," she wondered. "Will I slip through the earth to the other side?" Thump! Alice landed on a pile of dry leaves. She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. It disappeared saying, "Oh, my ears and whiskers, how late it's getting." Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. It was too small for her to go through. She saw a glass table with a golden. So this is how you have to read these two pages. Okay. If you want, you can read slowly also. If you want, you can read little bit faster also. Okay, and you should give appropriate pause when there is a comma, and you should quote the exact word of the speaker when there are inverted commas. When there is full stop or comma, you need to give appropriate pause. All right, and you should be able to pronounce words properly. So there are certain new words which we have learned in these two pages, like scamper. Scamper means what? Scamper means to run with quick little steps. Okay. Especially an animal runs with quick little steps and out of fear or excitement. Okay. Then curiosity. Curiosity means eagerness to know something. Because in the last poem we have done that word called curious. So curious means one who is eager to know. And curiosity is eagerness to know. So let's do the next page. She saw a glass table with a golden key on it. She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains, but she could not even get her head through the doorway. Oh, how I wish I could become smaller, she exclaimed loudly. Children, this story is adapted from Alice in Wonderland by Lewis Carroll. Okay, so there are certain new words also which we'll be discussing in the next video so that it becomes clearer to you. Children, today we'll do explanation of this chapter called Alice in Wonderland. So let's start. One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक बार एलिस जो एक लड़की है उसका नाम एलिस है, वो ट्री जो होता है ना पेड़ के नीचे लेटी हुई थी. क्या कर रही थी? वो अपनी सिस्टर को स्टोरी पढ़ते हुए सुन रही थी. उसकी सिस्टर स्टोरी रीड कर रही थी और उसे वो सुन रही थी. सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय. तभी अचानक उसने एक सफ़ेद रैबिट को, मतलब खरगोश को स्कैम्पर करते हुए देखा. स्कैम्पर मतलब बहुत तेज़ भागते हुए, क्विकली जब भागते हैं ना फियर या एक्साइटमेंट से, उसको बोलते हैं स्कैम्पर. ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट. उस जो रैबिट की कैसी आंखें थी?
उस रैबिट की पिंक आइज थी और उसने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था. He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away he said, "Oh dear, I'll be too late." अब उसने एक बड़ी सी जो है घड़ी निकाली अपने वेस्टकोट से. वेस्टकोट होता है ना जो हाफ कोट होता है आपका, वेस्ट तक आता है, उसको बोलते हैं. ठीक है, तो उस रैबिट ने अपनी वेस्टकोट पॉकेट में से घड़ी निकाली और वो तेज़ी में था, वो मतलब हरी में था, और उसने बोला कि ओ डियर मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगा. घड़ी देखते हुए उसने कहा, शी थॉट देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. इट कुड टॉक, इट वोर अ रेड वेस्टकोट एंड इट कैरिड अ वॉच. अब एलिस को लगा भाई ये जो रैबिट है इसमें कुछ अलग बात है, कुछ डिफरेंट है. ये रैबिट बोल सकता है, इसने लाल रंग का वेस्ट कोट पहना है और इसके पास वॉच भी है, इसने वॉच भी कैरी की हुई है अपने साथ. Alice wondered, a talking rabbit, a rabbit who wears a waistcoat. Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. अब जो है Alice उसको बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है. क्या देख के? पहले तो उसने सोचा यार एक ऐसा रैबिट है, इसने तो भाई लाल रंग का वेस्टकोट पहना है, घड़ी कैरी की हुई है, ये टॉकिंग रैबिट है तो बोल भी सकता है. तो वो सोचने लगी अरे ऐसा रैबिट जिसने वेस्टकोट पहना हुआ है. वो क्यूरियोसिटी में जलने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा उसको ईगरनेस हुई, कैसा रैबिट है ये. ठीक है, और उसने उस रैबिट को फॉलो करने का डिसाइड किया. उसने फॉलो करना शुरू कर दिया, उसके पीछे पीछे जाने लगी उस वाइट रैबिट के, क्योंकि उसको बहुत अनयूजुअल लग रहा है. वो जानना चाहती थी उसके बारे में और ज़्यादा. The rabbit started running and Alice followed the rabbit. The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. Alice jumped into the rabbit hole too. The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. अब रैबिट जो है वो तेज़ भागता है क्योंकि, तो वो भागने लगा. ठीक है, और एलिस जो है वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी. ठीक है, उसका पीछा करने लगी. और सडनली क्या होता है, रैबिट जो होता है वो एक लार्ज से रैबिट होल में, जो होल होता है ना रैबिट का, जहाँ पे रैबिट रहता होता है, वो जो होल बना होता है उसमें वो चला जाता है, नीचे चला जाता है. ठीक है, एलिस भी जंप कर जाती है उस रैबिट होल में, और रैबिट जो नीचे जाता 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 उस रैबिट होल में, उस रैबिट के बिल में वो नीचे चला जाता जाता है. ठीक है, एलिस सेड अलाउड, वेयर एम आई, हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, I must be getting somewhere near the center of the earth. She wondered, will I slip through the earth to the other side? एलिस ने जोर से बोला कि भाई मैं कहाँ आ गई हूँ, कहाँ हूँ मैं, कितने माइल्स में गिर गई हूँ नीचे. ठीक है, क्योंकि रैबिट का जो होल है वो डीपर 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 जाता जा रहा है. तो वो कह रही है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अर्थ के बीचों बीच आ गई हूँ, जैसे सेंटर पर आ गई हूँ. ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, मैं दूसरी साइड पर स्लिप हो जाऊंगी अर्थ की. उसे मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है उसके साथ, कहाँ पहुँच गई है वो. थम्प, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स. शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन. इट डिसअपियर्ड सेइंग, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग. तभी एलिस ने क्या किया, एलिस जो है गिर गई उसमें. ठीक है, थंप का ऐसे साउंड आया उस होल में, नीचे 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 बिल्कुल गिर गई. किस पर गिरी, एक ढेर पड़ा हुआ था वहाँ पे सूखी पत्तियों का, ड्राई लीव्स का, उस पर एलिस जो है जाकर गिर गई. ठीक है, उसने अपने आसपास क्विकली देखा और सडनली उसने वाइट रैबिट को दोबारा से देखा. वो गायब हो गया वाइट रैबिट, क्या बोल के कि अरे मेरे ईयर्स और विस्कर्स, क्योंकि वो बहुत धड़ाम से वो भी नीचे गिरा था ना, जब वो नीचे नीचे आया था डीपर डीपर होल में. तो उसने कहा कि अरे मेरे ईयर्स को, और विस्कर्स होती हैं जो मूछें होती हैं ना रैबिट की, जो उसके मूछें जैसी होती हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं विस्कर्स. तो उसने कहा ओ मेरे कान और विस्कर्स ये ठीक तो हैं. ठीक है, हाउ लेट इट्स गेटिंग. फिर वो टाइम के लिए कंप्लेन कर रहा है कि भाई मुझे लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है. Alice stood up and saw a small door about 15 inches long. Alice खड़ी हुई, क्योंकि वो ड्राई लीव्स पे गिरी तो उसे चोट नहीं आई. ठीक है, वो खड़ी होती है और वो एक छोटा सा डोर देखती है जो करीब 15 इंचेस ऊंचा होता है. ठीक है, इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, बट एलिस तो बहुत बड़ी है. ठीक है, एलिस के लिए वो होल जो है वो डोर जो है वो बहुत छोटा है. ठीक है, बहुत छोटा है, वो उसके थ्रू जा नहीं सकती. शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन. तभी उसने क्या देखा, एक कांच की टेबल देखी जिस पर क्या पड़ा हुआ था, एक गोल्डन की थी उसके ऊपर. ठीक है, शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड. तो वहाँ पे जो लॉक था, ठीक है, उसको खोलने के लिए उसने वो छोटी सी गोल्डन की ट्राई की और वो बड़ी खुश हो गई. क्यों खुश हो गई, क्योंकि वो फिट हो गई. ठीक है, उधर की जो है फिट हो गई, बिल्कुल लग गई. एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन. एलिस ने वो डोर खोला और उसने
क्या देखा? सबसे ब्यूटीफुल, लवलीस्ट, सबसे ज़्यादा सुंदर गार्डन, ठीक है, अपनी लाइफ में जो उसने कभी नहीं देखा, इतना सुंदर गार्डन देखा। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स इन दो स्कूल फाउंटेन्स। अब उसे बड़ी लॉन्गिंग हो रही है, उसे बड़ी इच्छा हो रही है, तमन्ना हो रही है कि काश वो भी इनमें से होती। किन में से? ब्राइट फ्लावर्स, और ये जो कूल कूल फुहारे चल रहे हैं पानी के, ठीक है, और ये जो सुंदर सुंदर कलर के फ्लावर्स हैं, इनके जैसी होती वो। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोर वे। बट वो जो डोर बहुत छोटा था, इसलिए वो उसका हेड जो है वहाँ पे जा भी नहीं सकता था, ठीक है। हो ओ हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम लाउडली। तो बस अब वो यही चाहती कि काश मैं बहुत छोटी हो जाती, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा जो है लाउडली ये चिल्लाती, काश मैं और छोटी हो सकती तो मैं इसके थ्रू चली जाती। Okay children, let's discuss the question answers of this chapter. First question is, while listening to the story, what did Alice see? Story सुनते वक्त Alice ने क्या देखा? While listening to the story, Alice suddenly saw a white rabbit which was going somewhere hurriedly. Story सुनते वक्त Alice ने एक सफ़ेद रैबिट को देखा जो कहीं जल्दी जा रहा था, ठीक है। What was different about the rabbit that Alice saw? क्या अलग था उस रैबिट में जो एलिस ने देखा? द रैबिट दैट एलिस सो वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर रैबिट्स बिकॉज उसके पास क्या क्या फीचर्स थे? इट वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट एंड अ रेड वेस्ट कोट। ब्लू कोट पहना हुआ था, रेड वेस्ट कोट पहना हुआ था उसने। इट वॉज गोइंग समवेयर हरिडली, बहुत जल्दी जल्दी वो कहीं जा रहा था। इट कुड स्पीक, वह बोल सकता था। इट हैड पिंक आइज, उसकी गुलाबी आँखें थी। इट हैड अ बिग वॉच, उसके पास एक बड़ी सी घड़ी थी। तो ये अनयूजुअल चीज़ें थी जो एलिस ने उस रैबिट में नोटिस करी, जो नॉर्मली एक रैबिट में हमें देखने के लिए नहीं मिलती, ठीक है। फाइन, सो आई हैव गिवन यू दीज मॉडल आंसर्स। आप चाहो तो अपने भी आंसर्स लिख सकते हो, बट दीज आर दी मॉडल आंसर्स बिकॉज दीज आर दी करेक्ट आंसर्स। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज, वेयर डिड द रैबिट गो? रैबिट कहाँ चला गया? द रैबिट एंटर्ड अ डीप रैबिट होल। रैबिट जो है एक बड़े से रैबिट होल में चला गया, ठीक है। हाउ डिड एलिस रीच्ड वंडरलैंड? एलिस जो है वंडरलैंड कैसे पहुंची? Alice, following the strange rabbit, jumped into the rabbit hole. She had a great fall into the deep rabbit hole. She fell on a heap of dry leaves and thus reached Wonderland. Alice जो है उसने उस strange से, उस अजीब से दिखने वाले rabbit को फॉलो किया, उसका पीछा किया और वो रैबिट होल में कूद गई, ठीक है। और वो बहुत डीप 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 चली गई उस रैबिट होल में, और वो किस पे गिर गई? ड्राई लीव्स की हीप पर, ढेर पर गिर गई, सूखी पत्तियों के। और इस तरह से वो, जब उसको की मिली थी ना, उसने खोली थी गोल्डन की, तो उसमें उसने क्या देखा? एक वंडरलैंड, एक अजीबो गरीब दुनिया देखी जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, फाउंटेन लगे हुए थे, बहुत अलग अलग चीज़ें देखी। व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी? एलिस ने क्या अजीब चीज़ें देखी? इन अ वंडरफुल इन वंडरलैंड आएगा, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। इन वंडरलैंड एवरीथिंग वॉज वेरी स्ट्रेंज। एलिस सॉ अ वेरी स्मॉल डोर अबाउट 15 inches हाई। शी सॉ द स्ट्रेंज door while rabbit entering the door. It was still saying it is getting late. Alice further saw a glass table on which a golden key was lying. She opened the lock with a golden key. Alice ने क्या अलग अलग चीज़ें देखी, स्ट्रेंज चीज़ें देखी कि उसने एक छोटा सा डोर देखा जो 15 इंचेस का था। उसके बाद उसने उस स्ट्रेंज रैबिट को दोबारा देखा उस डोर में एंटर करते हुए। वो अभी भी बोल रहा था कि वो लेट हो रहा है। उसके अलावा उसने एक ग्लास का टेबल देखा, कांच की टेबल देखी जिस पर गोल्डन की पड़ी हुई थी, और उसने वो डोर खोल लिया गोल्डन की वाला। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ। एलिस ने जो गार्डन देखा तो उसको डिस्क्राइब करेंगे। व्हेन एलिस ओपन द डोर शी फाउंड अ ब्यूटीफुल गार्डन। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन। बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था वो, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स थे उसमें, फ्रेगरेंस बहुत अट्रैक्टिव आ रही थी, फाउंटेन्स थे, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आपने बताना है कि क्या करेक्ट है। द रैबिट हैड, मैंने आंसर लिखे, पिंक आइज थी। हु वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी? एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी। हु फेल डाउन एंड डाउन? रैबिट गिर गया था डाउन एंड डाउन। पहले कौन गिरा था ये बताना है। हु सेड ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स लेट इट्स गेटिंग लेट इट्स गेटिंग? किसने बोलता है? रैबिट ने बोलता। द गार्डन एलिस सो वॉज लवली, और लवलीएस्ट भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट लवलीएस्ट, ठीक है। जो आपको ठीक लगे वो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इतना सबको क्लियर हो गया होगा आई होप। लेट्स मूव फर्दर। ये सारे क्वेश्चंस आपने कॉपी में नहीं करने हैं, इसमें से जो आपका लेट्स राइट वाला होता है वो कॉपी में करना है आपने, और जिसमें आपने अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी, मैं बता दूंगी आपको कौन कौन से कॉपी में करने, ठीक है। रीडिंग इज़ फन नहीं करना कॉपी में, लेट्स राइट करना। डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट।
तो जैसे साउंड्स बताए जो आप रात में सुनते हैं, ड्यूरिंग नाइट स्ट्रेंज साउंड्स ऑफ आउल्स कॉल, आउल जो होता है आपका उल्लू, उसकी आवाज़ आती है। ब्लोइंग विंड, चलती हुई हवा। नाइट वॉचमैन्स विसल, ठीक है, ये कुछ ऐसे साउंड्स है, समटाइम्स हॉरिफाइंग भी होते हैं, डरावने भी होते हैं, ठीक है। जो वॉचमैन होता है चौकीदार, वो सीटी बजाता है रात को, ठीक है, हवा चलती है उसका साउंड आता है। आउल जो होता है आपका उल्लू, उसकी आवाज़ आती है। तो ये कुछ ऐसे साउंड्स हैं आपके जो रात में आते हैं। इमेजिन योर एलिस एंड योर पार्टनर इज़ अ रैबिट, व्हाट वुड यू डू? सपोज करो आप एलिस हो, आपका पार्टनर रैबिट है, आप क्या करोगे? इफ़ आई वर एलिस एंड माई पार्टनर वर अ रैबिट, आई वुड एग्जैक्टली डू व्हाट एलिस डिड। यहाँ पे डू आएगा, एग्जैक्टली डू व्हाट एलिस डिड। आई वुड फॉलो माई पार्टनर टू द वंडरलैंड, वही करता जो एलिस ने किया। मैं अपने पार्टनर को वंडरलैंड तक फॉलो करता, अगर वो रैबिट होता और मैं एलिस होती तो, ठीक है। वॉट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन? आपको क्या लगता है एलिस ने गार्डन में क्या देखा होगा? एलिस सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, माउंटेन्स एंड अ गुड सीनरी इन द गार्डन। शी ऑल्सो फेल्ट द प्लेजेंट फ्रेग्रेंस ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। एलिस ने बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखे, फाउंटेन्स देखे, गुड सीनरी देखी, और उसने खुशबू भी, बहुत अच्छी खुशबू महसूस की होगी, ठीक है, उन कलरफुल फ्लावर्स की, ठीक है। हाउ वुड एलिस हैव गॉट इन टू द गार्डन? एलिस कैसे पहुंची होगी गार्डन में? इफ़ एलिस कुड बिकम स्मॉलर शी वुड हैव गॉट इन टू द गार्डन। अगर एलिस छोटी हो जाती, क्योंकि उसका दरवाज़ा बहुत छोटा था ना, उसका वंडरलैंड का, अगर वो और छोटी हो जाती तो वो पक्का जो है गार्डन में पहुंच जाती, ठीक है। बट वो तो बहुत बड़ी थी, तो इसलिए वे गार्डन में नहीं पहुंच पाई, ठीक है। तो अगर वो छोटी होती थोड़ी सी, वो बोल रही ना, आई विश आई कुड हैव बीन लिटिल स्मॉलर, वो ये विश करिए ना, क्योंकि वो वंडरलैंड की सैर करना चाहती थी, वंडरलैंड घूमना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत बड़ी थी उसके लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपका, इसमें आपने क्या बताना है? एक वर्ड बताना है जो स्टोरी से मिलता जुलता है। टू वॉक फास्ट, टू वॉक फास्ट को क्या बोलते हैं? हरी। टू थिंक को क्या बोलते हैं? वंडर। हैप्पी को बोलते हैं डिलाइट, ठीक है। एंड टू बी सीन नोवेयर को बोलते हैं डिसअपियर, गायब हो जाना। एट वंस मतलब क्विकली। मूव फास्ट को बोलते हैं स्कैम्पर, मैंने बताया था आपको। एंड टू बी इंक्विजिटिव को बोलते हैं क्यूरियस। तो ये आपने सेंटेंसेस भी यूज़ करने हैं, अच्छा रहेगा अगर आप इस सेंटेंसेस में भी यूज़ करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैं आपको अपोजिट और सेंटेंस नहीं बताऊंगी, सिर्फ अपोजिट्स बताऊंगी, सेंटेंसेस आपने खुद करने हैं। लवली का आपका सिमिलर वर्ड हो गया अट्रैक्टिव, ठीक है, और अपोजिट क्या हो गया? नेस्टी। आप अगली भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टॉकिंग का हो गया सिमिलर वर्ड चैटिंग, और इसका अपोजिट हो गया साइलेंट। लिसनिंग का हो गया सिमिलर वर्ड हियरिंग, और इसका अपोजिट हो गया स्पीकिंग। सी का हो गया लुक एट, और अपोजिट हो गया इग्नोर, ठीक है। सेंटर का हो गया सिमिलर वर्ड कोर, और उसका अपोजिट हो गया पेरिफेरी या बॉर्डर। अब जो इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ, व्हाट डू यू थिंक यू विल सी, व्हाट वुड यू फेल्ट? ये आपका होमवर्क है, खुद से करना है इमेजिन करके आपको, कि आप सपोज अर्थ के सेंटर पे पहुंच गए हो, ठीक है, आप उस जर्नी पे जा रहे हो जहाँ पे अर्थ की सेंटर है, आपको क्या दिखा, आपने कैसा फील किया। नेक्स्ट है एलिस, जो है एक स्ट्रेंज रैबिट को फॉलो करती है, तो आपने उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आपने रीअरेंज करने हैं ये। टॉक रैबिट अ हाउ कैन, तो क्या आएगा? हाउ कैन अ रैबिट टॉक। गोइंग ही इज़ वेयर, वेयर इज़ ही गोइंग, ठीक है। रीड ही कैन टाइम द, कैन ही रीड द टाइम। हरी इज़ इन वे ही, तो वाई इज़ ही इन अ हरी। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, ये मॉडल आंसर्स हैं, आप चाहे तो अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं।